Aishwarya Utale, as everyone know me. So here I am to represent a digital logic series for all the information technology and computer science students. Before getting to this video, I will like you to tell that previously I have shooted a video on sign bit integers and ones complement and a basic review about how to write a number in various bases. Please go through that video first and then join this video, so you will understand in a better visualization or a better conceptual way. So let's get started to this video. This is a very important topic, that is 2's complement. Basically, in our digital logic or a computerized function, now we use more often because it is very prescribed way, or it is a very good way to understand, or there are no disadvantage, as previously I have told in a sign bit integers and ones complement. If you have not seen the disadvantage part, please go to the description section to get that video. Let's begin with the topic, that is 2's complement. In the 2's complement representation, you can see this whole chart. I have represent every 4-bit number in this circular structure. The circular structure contains the number from -7 to +8. Here, yes, this +8 is the extra bit added because we have removed one disadvantages from both the previous representation. What was that representation? Here is always, you can look, here is only 1 0. There is no positive 0 or no negative 0. You can see in this whole chart, there is only 1 0, that is positive 0. There is no negative 0, or there is no 2 representation of 0 in this 2's complement. Therefore, this is very efficient way to represent any number. So, I will denote this 0 as my absolute 0. Understood? So the first disadvantage of both the sign and the ones complement is removed, that it has only one representation of 0, that is +0. Now in 4-bit, the range is from, in this 4-bit, the range is from -7 to +8 in 4-bit. Then for n-bit, what will be the formula? That is -2 raised to n minus 1 to +2 raised to n minus 1 minus 1. The formula also changes for 2's complement. यहाँ the range मतलब n bit यूज करने पर कौन कितने से कहाँ तक रेंज आती है, इसका जेनरिक फॉर्मूला भी चेंज होता है इन 2's complement. बट इन 1's complement क्या, इन 1's complement एंड इन साइन बिट इंटीजर क्या था, that is मैं यहाँ लिखती हूँ just to get you the review part, that is -2 raised to n minus 1 minus 1 to +2 raised to n minus 1 minus 1. ये मेरा साइन बिट इंटीजर एंड 1's complement का फॉर्मूला था टू रिप्रेजेंट n बिट किधर से कहाँ तक रेंज आती है. बट फॉर 2's complement the formula change, that is -2 raised to n minus 1 to +2 raised to n minus 1 minus 1. n में n is equal to number of bits. या n में अगर मैं 5 डालूं तो 5 नंबर ऑफ बिट्स में क्या क्या रेंज आएगी, कहां से कहां तक रेंज आएगी, ये फॉर्मूला मुझे जनरेट कर देगी कि क्या कहां से कहां रेंज आती है. Understood? I think you guys have understood this. So यहाँ 2's complement का representation range का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है. अभी डिसएडवांटेजेस जो साइन बिट इंटीजर में था, 1's complement में था, वो पूरे डिसएडवांटेज निकल कर जाते हैं इन 2's complement. फर्स्ट डिसएडवांटेज जो मैंने बोला, यहाँ सिर्फ 0 की एक ही वैल्यू यूज की जाती है, यहाँ 2 वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ओनली पॉजिटिव 0 इज यूज, देयर इज नो नेगेटिव 0 हियर, और देयर इज नो 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 हियर. So the second disadvantage also is removed from 1's complement and sign bit integer, that is यहाँ 16 distinct element है, यहाँ 16 distinct element है.
बराबर, पर अपन पूरे 16 के 16 रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, बट इन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड इन साइन बिट इंटीजर अपन देयर वाज 2 0 रिप्रेजेंटेशन, प्लस 0 भी था, माइनस 0 भी था, सो ओनली वी वर यूजिंग 15 डिस्टिंक्ट, बराबर, वी वर यूजिंग 15 डिस्टिंक्ट नंबर, बट यहाँ पूरे के पूरे 16 डिस्टिंक्ट नंबर अपन यूज करते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं है कि एक दो रिप्रेजेंटेशन है 0 के लिए या दो रिप्रेजेंटेशन है 1 के लिए, नो, यहाँ प्योरली सब नंबर डिस्टिंक्टली यूज होते हैं। Okay, now the third disadvantage, which was in sign bit integer but not in ones complement. Okay, यहाँ भी number are in cyclic order, that is after the largest number, that is +8, there is -7, that is least number, छोटा, बहुत छोटा नंबर ग्रेटर नंबर के बाद आता है। सो ये यहाँ साइक्लिक ऑर्डर फॉलो की जाती है। देयर इज नो डिसएडवांटेज, दैट वाज इन साइन बिट इंटीजर, यहाँ वो डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज इन द साइन बिट इंटीजर वाज positive sign extension was working but the negative sign extension wasn't, right? वहां पॉजिटिव एक्सटेंशन चल रहा था बट नेगेटिव एक्सटेंशन में प्रॉब्लम दे रहा था, राइट? सो यहाँ मैं आपको एक बताऊंगी, प्लीज नोट दिस, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो मेरे पॉजिटिव सीरीज आएंगे, पर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो मेरे नेगेटिव सीरीज आएंगे। प्लीज नोट दिस, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई रट्टा मारने की गरज नहीं पड़ेगी आपको। सो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो पॉजिटिव नंबर डिनोट होंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो नेगेटिव नंबर डिनोट होंगे। नाउ कमिंग टू दी साइन एक्सटेंशन पार्ट, मैं अगेन 5 लेती हूँ सो दैट वंस कॉम्प्लीमेंट में मैंने वही एग्जाम्पल लिया था, सो टूज कॉम्प्लीमेंट में भी वही एग्जाम्पल लूंगी सो दैट आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अभी इन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो पॉजिटिव एक्सटेंशन वर्क, पॉजिटिव साइन एक्सटेंशन perfectly work. That is, if मैं positive 5 लूं तो the represent is 0 1 0 1, बराबर, पर अगर मैं साइन एक्सटेंशन लगाऊं दैट इज MSB बिट के 0 या 1 को बढ़ाओ, 0 इज फॉर पॉजिटिव नंबर और अगर 1 होगा तो वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ये तो बेसिक सबको पता रहेगा, पर अगर मैं यहाँ और एक 0 ऐड करूं तो भी ये 5 ही रहने वाला है। अगर मैं और एक 0 ऐड करूं तो भी ये 5 ही रहेगा, और एक 0 ऐड करूं तो भी ये 5 रहेगा, या इनफाइनाइटली कितने भी जीरोस ऐड करूं टू दी MSB बिट, ये 5 ही डिनोट करेगा। देयर इज नो चेंज और नो चेंज इन एनी वैल्यू, सो यहाँ +5 ही डिनोट होगा। सो फॉर नेगेटिव साइन एक्सटेंशन, फॉर नेगेटिव साइन एक्सटेंशन इज इट वर्किंग और नॉट, ये देखने के लिए मैं फिर से -5 की वैल्यू लूंगी, दैट इज 1011, दैट इज 1011। मैं फिर से -5 की वैल्यू ली, दैट इज 1011। पर अगर मैं ये 5 बिट में लिखना चाहती हूं तो मैं क्या लिखूंगी, 11011। बट ये मेरा -5 है या नहीं, ये कैसे मैं प्रूव करूंगी? वंस कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज 2n - 1 - x, वेर मैं यहाँ अगर मुझे -5 की वैल्यू 5 बिट्स में चाहिए तो मैं यहाँ 5 बिट्स ऐड करूंगी, अगर मुझे 6 बिट्स चाहिए तो मैं यहाँ 6 लिखूंगी, अगर मुझे 7 चाहिए तो मैं यहाँ 7 बिट्स में लिखूंगी, ठीक है। बट अगर मेरे को -5 की वैल्यू चाहिए 7 बिट में तो मैं कैसे लिखूंगी, 2⁷ - 1 - 5, ये मेरे को डिनोट करेगा कि -5 की वैल्यू मैं अगर 7 बिट में लिखूं फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट तो ये फॉर्मूला मैं यूज करती थी। बट इन टूज कॉम्प्लीमेंट द फॉर्मूला ऑल्सो चेंज, in 2's complement the formula changed from 2⁻n - x, understood? That is 2⁻n - x. n denotes number of bits and x denotes कौन सा नंबर मुझे नेगेटिव फॉर्मेट में लिखना है। अभी मैंने 5 बिट
चाहिए मुझे -5, तो मैं क्या लिखूंगी 2⁵ -5। ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है। पर अगर मुझे ये ही -6 में लिखना होगा तो मैं यहाँ 6 डालूंगी। अगर मुझे 7 में लिखना है तो मैं यहाँ 7 डालूंगी। अंडरस्टूड? अगर मुझे 5 बिट्स में लिखना है तो मैं यहाँ x की जगह 7 डालूंगी। सिमिलरली दैट वाज सेम फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा अलग था। सो अगर again coming back to the formula, 2⁵ मतलब मेरे को 5 को 5 बिट्स में लिखना है तो उसका आंसर आता है 27। अभी 27 को मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूं तो मेरी ये सीरीज आती है। यू कैन सी, अगर तुम लोग 2⁴ प्लस 2⁵ प्लस 2⁴ प्लस 2⁵ करे तो आपका वैल्यू आएगा 27। सो ये अगर नंबर मैं बाइनरी में लिखूं तो मुझे -5 की वैल्यू मिलती है, विच इज करेक्ट। अंडरस्टूड? -5 को अगर, लेट मी इरेज दिस, अगर मुझे -5 को 5 रिप्रेजेंट करना है इन 6 बिट्स, देन द फॉर्मूला मैंने आपको बोला दैट इज 2⁻n - x, राइट? तो 2⁶ -5 विच गिव्स यू अराउंड 59। यस, तो अगर मैं 59 को बाइनरी सीरीज में लिखूं, मतलब 59 को मैं बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करूं, उसकी वैल्यू आती है 1 1 1 0 1 1 0 1 2 3 4 5। ये मेरा 6 बिट रिप्रेजेंट है -5 के लिए। वैसे ही अगर 7 बिट लिखना होगा तो यहाँ 7 डालो। अगर मुझे 7 बिट -8 लिखना होगा तो यहाँ आएगा 2⁸ -7। मतलब जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है वो, और कितने बिट चाहिए वो, फॉर नेगेटिव नंबर। ओके, पॉजिटिव नंबर आर वेरी इजी, जो वंस कॉम्प्लीमेंट में यूज किए वो सेम रिप्रेजेंट है, एंड साइन बिट इंटीजर में यूज किए वो सेम रिप्रेजेंट है। यहाँ सिर्फ क्या चेंज होता है, यहाँ सिर्फ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन का चेंज होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, इन वंस कॉम्प्लीमेंट मुझे अगर 3 को -3 में लिखना होगा, दैट इज 0 0 1 1, दिस इज +3, पर ये मुझे -3 में लिखना होगा तो मुझे सब एलिमेंट इंटरचेंज करने पड़ते थे, 0 से 1, 0 को 1 में और 1 में 0 को। सो यहाँ आएगा, this is the -3 का representation in one's complement, but in two's complement ये ही नंबर चेंज। यहाँ अगर मुझे +3 की वैल्यू 2's complement में लिखना होगा तो मुझे पहले 1's complement में लिखना होगा, दैट इज 1 1 0 0, और उसमें 1 ऐड करना होगा, दैट इज 1 1 0 1। ये मेरा -3 की वैल्यू है। यू कैन सी हियर, ये मेरी -3 की वैल्यू है। बट गेट में इतनी टाइम नहीं होती है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में करो +1 करो, नो। सो मैं बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक दूंगी, प्लीज नोट इंपॉर्टेंट टिप। ओके, इंपॉर्टेंट टिप दूंगी, दैट इज अगर मेरे पास +3 है, उसको मुझे 2's complement में लिखना होगा तो मैं पहले ट्राई करूंगा ट्रैवर्स करने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर मेरा फर्स्ट 1 आया तो उसको वैसे के वैसे लिखना, बट आफ्टर फर्स्ट 1 एनकाउंटर होने के बाद जितने भी नंबर्स है उसके आगे वो पूरे इंटरचेंज करेंगे फ्रॉम 1 to 0 एंड 0 को 0 to 1 में। तो अगर 1 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 है, 0 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आएगा। अंडरस्टूड? लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, मैं यहाँ एग्जाम्पल 2 लिखते हैं। एग्जाम्पल 2 लेट्स गेट फॉर +1। अगर +1 है
तो पॉजिटिव में लिखती हूं मैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। बट -1 में क्या होगा, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आना, फर्स्ट 1 एनकाउंटर हुआ वो वैसे की वैसे छाप देना, बट उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो मुझे इंटरचेंज करना है, 0 को 1 में और 1 को 0 में। यहाँ 0 है तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 0 है तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 0 है तो यहाँ आएगा 1। दिस इज +1, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है C। सेम रिप्रेजेंटेशन है। यस, आपको मेरे को जो समझाना होगा, आई थिंक आपको बहुत क्लियरली समझा होगा, बट अगर कोई पार्ट नहीं समझा है प्लीज रिवाइंड बैक। ये सीरीज वैसे की वैसी आपके लिए सेव रहेगी हमेशा, तो पीछे जाके फिर से एक बार डिटेल में समझना, पूरी सीरीज समझ में आएगी। ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम जो नंबर सिस्टम में आते हैं, जो अपन अभी आगे करने वाले हैं। सो प्लीज गेट दिस 3 रिप्रेजेंटेशन इन योर दिमाग प्रॉपरली विद प्रॉपर फॉर्मूला। जो भी रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया प्लीज नोट इन योर बुक, सो दैट वो हमेशा कॉपी आपके पास रहेगी, एग्जाम के टाइम में भी रेफर करने आपके पास रहेगी। अंडरस्टूड? So let's get started with a new concept, okay, of 2's complement only। जैसे मैंने पहले भी बोला था 2's complement आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज ये बहुत कन्वीनियंट है एंड कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है ऑफ 2's complement। सो 2's complement के मेथड्स होंगे या रूल्स होंगे, राइट, टू परफॉर्म। सो द रूल्स ऑफ 2's complement आर, फर्स्ट, अगर मैं 2's complement 2 नंबर लूंगी, मतलब एक नंबर जो मुझे दूसरे नंबर से ऐड करना है या माइनस करना है, तो वैसे आई विल गिव यू 2 नंबर्स, तो वो 2 नंबर्स मुझे अनसाइंड वे में ऐड करना है। ओके, अनसाइंड बाइनरी वे में मुझे नॉर्मली ऐड करना है। इन बाइनरी, जैसे मैं बाइनरी में करती हूँ ऐड, वैसे मुझे ऐड करना है। तो मैं फर्स्ट क्या लिखूंगी, एडिंग और subtracting 2 number, 2 given number लिखते हैं in unsigned binary way। ओके, क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट रूल इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 गिवन नंबर इन अनसाइंड बाइनरी वे। 2 नंबर दिया होगा, वो मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो अनसाइंड वे में करना होगा। ओके, नाउ सेकेंड इज, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो मुझे कैरी आएगा, जो मेरी कैरी फॉर्म करेगा एट द एमएसबी बिट, अगर कैरी फॉर्म हुआ तो वो मुझे सिंपली डिस्कार्ड करना है, वहां कुछ ऑपरेशन करने जाना नहीं है, वो निकाल देना है मेरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इसमें से। सो द carry generated must be simply discard, must be simply discard। ओके, वो नॉर्मली डिस्कार्ड कर देनी है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी है अपन को कैरी बिट में। नाउ इज द थर्ड स्टेप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर मेरा एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, जैसे कि मैं +7 और +8 को ऐड करूं तो मुझे आता है 15, बराबर। अगर मैं +8 और +7 को ऐड करूं तो मुझे आता है +15, पर अगर मैं 4 बिट्स में वो ऐड कर रही हूं तो 4 बिट्स के रेंज में +15 आता है, नहीं आता है, तो मेरा आउट ऑफ द रेंज हो गई, बराबर ना। मेरा सीक्वेंस जो मेरा 15 आ रहा है 4 बिट्स में, वो मैं कभी रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती हूँ, तो वो मेरा आउट ऑफ द रेंज जा रहा है। तो इसको कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। जब भी ओवरफ्लो कंडीशन आता है तो मेरा आंसर आउट ऑफ द रेंज होता है, या मेरा आंसर मैंने जो कैलकुलेट किया है वो मैंने रॉन्ग वे में किया है। तो व्हेन ओवरफ्लो आता है तो आंसर हमेशा रॉन्ग होता है या आउट ऑफ द रेंज जाता है 4 बिट्स के या 5 बिट्स के, समझा। सो अगर आउट ऑफ द
रेंज आंसर आया तो वो होता है ओवरफ्लो कंडीशन। अंडरस्टूड? तो वो होता है ओवरफ्लो कंडीशन। ये 3 बेसिक रूल्स है जो हमें फॉलो करना है व्हेन वी आर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अभी ये मैंने थोड़े रूल्स बताए, तो लेट्स टेक एग्जांपल कि कब कैरी जनरेट होगा, कब कैरी जनरेट नहीं होगा, या कैरी जनरेट होगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा, या कैरी जनरेट होगा तो ओवरफ्लो होगा। ये मैं आपको अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी तो तुम्हें थोड़ा आइडिया आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ओके, तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे आपको पूरे कंडीशन समझ में आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2 + 3। 2 + 3 का आंसर मुझे पता है कि 5 आएगा, पर मैं यहाँ 4 बिट यूज की है, नीचे भी 4, ऊपर भी 4 बिट है, नीचे भी 4 बिट है। पर इन 4 बिट अगर मैं 2 + 5 करूं तो 5 मेरा रेंज में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, मेरे 4 बिट रिप्रेजेंटेशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो द आंसर क्या आएगा? 0 1 कितना आएगा? 1 कैरी होगा, यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। सो अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं और मुझे पॉजिटिव नंबर मिलता है और जो कि रेंज में है मेरे, तो ये आंसर है राइट। और यहाँ नो कैरी, यहाँ नो कैरी जनरेटेड, यहां कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, टू डिस्कार्ड दैट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ मैं -1 और -2 को ऐड करूं तो क्या आएगा? तो ये मैंने -1 लिया है, ये मैंने -2 लिया है, टूज कॉम्प्लीमेंट के यहाँ दिख जाएगा, ये -1 का रिप्रेजेंटेशन है ना, और ये -2 का। सिमिलरली मैंने -1 और -2 का रिप्रेजेंटेशन लिया है, तो अगर मैं ये ऐड करूं तो इसकी वैल्यू आती है, ये आएगा मेरा 1, एक कैरी जनरेट होगा, यहाँ एक कैरी जनरेट होगा 1, अगेन एक कैरी जनरेट होगा और ये बराबर। यहाँ देखो कैरी जनरेट हुआ है और यहाँ ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं -1 + -2 करूं तो मेरे को -3 आंसर आएगा। सी -3 का रिप्रेजेंटेशन इज 1101, तो यहाँ भी मेरा 1101 आया है, दैट इज -3। और यहाँ कैरी जनरेट हुआ है तो मैं कैरी को सिंपली डिस्कार्ड करूंगी और मैं ये चेक करूंगी कि -3 मेरे रेंज में आता है। यस इन 4 बिट रिप्रेजेंटेशन अगर मैं -1 + -2 करूं तो -3 मेरा रेंज में आता है। देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन, सो कैरी जनरेटेड and no overflow condition. Understood? Now coming to the third example, 6 + 7 करो, 6 + 7 करो which gives me answer 13, right? तो मैं यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, okay? This gives me -3 की वैल्यू, दिस गिव्स मी -3 की वैल्यू। सी -3 की वैल्यू इज 1101, सो ये मेरे को आंसर 1101 आता है। टेक्निकली सोचो, 6 + 7 करूं तो -3 आएगा आंसर। इफ मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं तो मुझे कोई तो पॉजिटिव ही नंबर ही आना चाहिए, राइट? और वो आंसर हमेशा 13 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, लाइक -3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ओवरफ्लो ऑकर हुआ है, दैट इज अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं और मुझे एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो इसे मैं कहती हूं कि ये ओवरफ्लो कंडीशन है, इसे मैं कहती हूं कि ये ओवरफ्लो कंडीशन है और यहाँ कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगी? नो कैरी बट ओवरफ्लो condition. Okay, now coming to the fourth example, -6 को अगर मैं -7 से ऐड करूं, -6 को अगर मैं -7 से ऐड करूं तो मुझे आता है -13, बट इन 4 बिट रिप्रेजेंटेशन -13 है ही नहीं,
आउट ऑफ द ऑर्डर है, ये मुझे पता है, तो मैं प्रूफ कैसे करूंगी? यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, यहां आएगा 0, बट यहां आएगा 0 और 1 इज द कैरी। अगर मैं दो नेगेटिव नंबर को ऐड करूंगी, मुझे नेगेटिव नंबर ही आना चाहिए, बट यहां तो मुझे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, दैट मीन्स यहां ओवरफ्लो ऑकर हुआ है। इफ दो नेगेटिव नंबर को मैं ऐड कर रही हूं तो मुझे नेगेटिव नंबर आना चाहिए, ना कि पॉजिटिव। सो यहां ओवरफ्लो ऑकर हुआ है, ओवरफ्लो कंडीशन एंड कैरी जनरेटेड। ये कैरी मैं सिंपली डिस्कार्ड करूंगी। अंडरस्टूड? ये मैंने चारों कंडीशन लिया है, नो कैरी जनरेटेड, नो ओवरफ्लो, कैरी जनरेटेड, नो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, नो कैरी जनरेटेड और कैरी जनरेटेड एंड विथ ओवरफ्लो कंडीशन। सो ये मुझे लगता है आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे मुझे समझेगा ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, या अंडरफ्लो है, ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, या मेरा आंसर परफेक्टली रेंज में आ रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, सो प्रीवियसली मैंने 4 एग्जांपल्स दिए थे एडिशन में, राइट? इन एडिशन ऑपरेशन, इन एडिशन ऑपरेशन मैंने 4 एक्सप्रेशन या 4 सम्स दिए थे, राइट? कैरी जनरेट होगा, कैरी नहीं जनरेट होगा, कैरी जनरेट होने के बाद ओवरफ्लो होगा या नहीं, बराबर? तो इन एडिशन सब्जेक्ट मैं कैसे डिटेक्ट करूंगी कि ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, व्हाट कंडीशन इज सेटिस्फाइड इफ हुआ है, तो ये एक्सप्लेन करने। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। इन एडिशन अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं, अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं तो मेरे चांसेस ज्यादा है एडिशन के कि ओवरफ्लो हो जाए। जैसे कि अगर मैं +5 और +7 को ऐड करूं तो 7 से बड़ा नंबर ही आएगा नीचे, बराबर ना? इफ मैं 7 को ऐड करूं +5 से तो मुझे 7 से बड़ा नंबर ही आएगा, दैट इज 12 आएगा, बराबर? इफ द सेकेंड इज इफ मैं -5 को एंड -2 को ऐड करूं, ओके? इफ मैं -5 को और -2 को ऐड करूं तो मुझे -7 ही आने वाला है, बराबर? मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके भी स्मॉलेस्ट लेसर नंबर आएगा, मतलब ये मेरा स्मॉल नंबर है दोनों में, तो उससे भी लेसर नंबर ही आएगा। और मैं ऐड करूं तो लार्जेस्ट नंबर के, मतलब बिगर नंबर के लार्जेस्ट नंबर ही आएगा, मतलब बिगर नंबर से और बड़ा नंबर ही आने वाला है, छोटा नंबर तो आएगा नहीं। तो ये दोनों कंडीशन में ओवरफ्लो होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मैं अगर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं तो जो जब से बड़ा नंबर है उससे बड़ा वैल्यू आने वाली है, और अगर मैं नेगेटिव नंबर को ऐड करूं तो जो बहुत ज्यादा कम है उससे भी कम वैल्यू आएगी, तो यहाँ ओवरफ्लो होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर लूं और एक नेगेटिव नंबर लूं और दोनों को ऐड करूं तो चांसेस बहुत कम है ओवरफ्लो होने के, राइट? अगर मैं +5 लूं और -2 लूं तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है ओवरफ्लो आने के, बराबर? तो ये मैंने 3 कंडीशन बताया कि कब ओवरफ्लो हो सकते हैं चांसेस और कब कंडीशन है कि कब ओवरफ्लो के चांसेस बहुत कम है। तो कमिंग टू द टॉपिक कंडीशन, कंडीशन कैसे समझेगा या किससे समझेगा कि ओवरफ्लो ऑकर हुआ है? अभी कंडीशंस क्या होंगे ओवरफ्लो के? अगर मैं लिखूं a⁻n−1, a⁻n−2 to a⁻n है, ओके? और ये मैं प्लस कर रही हूं कोई तो b वैल्यू से, और इनका मुझे सम आता है Sn−1, Sn−2 to Sn, ओके? ये मैं दो नंबर को ऐड कर रही हूं और उनका मुझे पर्टिकुलरली सम मिल रहा है।
तो मेरे को कैसे समझेगा कि ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर हुआ है? दैट इज इफ a रेज टू n माइनस 1 अगर नेगेटिव होगा, ओके, और a b n माइनस 1 अगर नेगेटिव होगा, मतलब यहां दोनों के प्लेस पर 1 1 होगा, बट मुझे सम आने वाला है पॉजिटिव, और मुझे सम 0 आएगा। a रेज टू माइनस 2 प्लस b रेज टू माइनस 2, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, बट मुझे उसका आंसर आ रहा है नेगेटिव, और मुझे उसका आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो ये कंडीशन होती है मेरी। ये पूरे कंडीशन के वजह से I will prove that the following two numbers which I have added, both positive, both negative और one positive, one negative, उसमें ओवरफ्लो ऑकर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। प्लीज नोट इट, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड मेथड कि ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए कौन सा और एक मेथड अपन निकाला है। तो लेट्स सेकेंड इज इफ मैं दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं, दैट इज 0 0 1 0, दैट इज +2, और 0 0 1 1 +3 को मैं ऐड करूं तो यहां 1 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा और यहां 0 आएगा। यहां दैट मीन्स here there is no carry generated and here also no carry generated. ये दोनों कैरी सेम है, दैट इज एमएसबी बिट के पहले वाले बिट जो कैरी दे रहा है और जो मेरी एमएसबी बिट कैरी दे रही है, अगर दोनों सेम है तो नो ओवरफ्लो कंडीशन। अंडरस्टूड? अगर मेरी एमएसबी बिट के पहले वाली पीछे वाली ये दोनों अगर ओवरफ्लो मतलब कैरी जनरेट कर रही है और मेरी एमएसबी बिट जो कैरी जनरेट कर रही है, अगर ये दोनों की कैरी सेम है तो उसे ओवरफ्लो नहीं बोलते। देयर इज नो ओवरफ्लो कंडीशन। बट अगर मैं ये लूं, ओके, अगर मैं ये लूं तो यहां 1 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा, कूल, बराबर। और यहां कैरी जनरेट नहीं होगी, बट यहां कैरी जनरेट होगी। एंड यू कैन सी दैट दिस टू आर पॉजिटिव नंबर विच गिव्स मी द आंसर इन नेगेटिव नंबर। दिस इज द ओवरफ्लो कंडीशन। बट एमएसबी बिट के पहले वाले दो नंबर, एमएसबी बिट के पहले वाले दो नंबर जो कैरी जनरेट कर रही है और जो एमएसबी बिट वाली दो नंबर कैरी जनरेट कर रही है, इफ ये दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन। यू कैन सी दैट। समझा? दोनों कंडीशन मैंने प्रूफ किया है, पहले इसमें भी मैंने फर्स्ट जो मैंने कंडीशन दिया है वो भी देख लो, और ये सेकेंड जो मेरी कैरी जनरेट हो रही है एमएसबी बिट के पहले वाले दो बिट से और जो मेरी कैरी जनरेट हो रही है एमएसबी बिट से, अगर दोनों कैरी डिफरेंट है तो ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होता है। बट अगर दोनों कैरी इज सेम, then there is no overflow condition, as I have explained you in these two examples. Now let's begin with the subtraction operation. अगर मैं subtract कर रही हूँ दो नंबर तो overflow कब occur होगा और कब occur नहीं होगा। Okay? So let's begin with the subtraction operation. Subtraction. अगर मैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब a माइनस b है। अभी बेसिकली इन अनसाइंड बाइनरी जो अपन एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन का ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं जनरेट किया, तो अपन क्या करते हैं इन सब्ट्रैक्शन आने पर a प्लस 20 टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, a प्लस 20 टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ओके, बराबर। इफ सब्ट्रैक्शन आएगा, सब्ट्रैक्शन का ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन a प्लस 20 टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब b का टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं a में।
आई विल एक्सप्लेन यू बाय टेकिंग द एग्जाम्पल। अगर मैं +5 को माइनस करना चाहती हूँ फ्रॉम +7, तो मेरा +5 क्या है 0101 और +7 क्या है 0111, बराबर। ये मेरा +5 है और ये मेरा -5 है, इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं पहले 7 को +7 को 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगी, दैट इज 0101, बराबर। ये तो +5 वैसे ही रहेगा, प्लस करूंगी इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, दैट इज मैंने कैसे बोला, यहां 1 आएगा, फर्स्ट 1 एनकाउंटर हुआ, बाद में ये, ओके। इसका वैल्यू होगी दिस वन, अंडरस्टूड। तो यहां देखा ओवरव्यू से क्या समझ रहा है, यहां देखो ओवरफ्लो ऑकर नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं अगर दो सेम साइन के फॉर्म, मतलब दो सेम साइन के नंबर को लू, दैट इज +5 को लू या +7 को लू या दो प्लस नंबर को लू या दो माइनस नंबर को लू, तो ये बाय डिफॉल्ट इंटरचेंज होगा टू पॉजिटिव नंबर्स। मतलब अगर ये मैंने 5 लिखा है और ये मैंने 7 लिखा है, जब भी मैं माइनस करने जाऊं तो ये जो सेकेंड नंबर है ना वो नेगेटिव में फॉर्म हुआ मेरा, यहाँ ये मेरा 7 में -7 में हुआ और ये तो ऑपोजिट साइन हुआ। तो मैंने पहले एडिशन में बोला अगर दो ऑपोजिट साइन होंगे तो ओवरफ्लो के चांसेस कम है, तो यहाँ ओवरफ्लो के चांसेस कम है ऐसे सिचुएशन में। दैट मीन्स इन सब्ट्रैक्शन इफ वी take two positive number or if we take two positive number or two negative number, then the chances of overflow is less, मतलब चांस कम है। बट अगर मैं दो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में लूं, तो बाय डिफॉल्ट मैं वो वैसे ही रहेगा और वो कन्वर्ट होगा पॉजिटिव में, और दैट मीन्स वहां ओवरफ्लो होने के चांसेस है। एडिशन की कंडीशन अलग है ओवरफ्लो कंडीशन में और सब्ट्रैक्शन की अलग है, ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक कि अवॉइड कैसे करना है ओवरफ्लो को। तो यहाँ इन सब्ट्रैक्शन पार्ट तो मैंने ओवरव्यू बता दिया है एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में। अगर नहीं समझा है तो प्लीज रिवाइंड बैक एंड सी दी sums or the examples which I have given are very explained in a better way, तो आपको थोड़ा जल्दी कैचअप हो जाएगा। सो इन एडिशन ओवरफ्लो कब ऑकर हो सकता है, व्हेन दो पॉजिटिव नंबर या दो नेगेटिव नंबर ऐड किए हैं, बराबर। पर अगर सब्ट्रैक्शन में मैं सेम लू, दो पॉजिटिव लू और दो नेगेटिव लू, तो वो इंटरचेंज हो जाती है सम। मतलब इफ दो पॉजिटिव होगा जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो नीचे वाला हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, दैट मीन्स इंटरचेंज होगा, और उसका मतलब है कि ओवरफ्लो होने के चांसेस कम है, राइट। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर और दो नेगेटिव नंबर लूं, तो ओवरफ्लो होने की चांसेस कम है। बट इन एडिशन इफ मैं दो पॉजिटिव लूं और दो नेगेटिव नंबर लूं, तो ओवरफ्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, ये आपको समझा होगा। मैंने कंडीशंस भी बताई है कि ओवरफ्लो कब हो सकता है और दो मेथड्स बताए ओवरफ्लो चेक करने के लिए, राइट। और नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू अवॉइड ओवरफ्लो कंडीशन। हाउ टू अवॉइड ओवरफ्लो कंडीशन, मुझे अगर अवॉइड करना है ओवरफ्लो कंडीशन इन, मुझे +6 को और +7 को ऐड करना है, दैट इज 0110 और 0111 को मुझे ऐड करना है, तो मुझे इसकी वैल्यू आएगी +13, राइट। मुझे इसकी वैल्यू आनी चाहिए +13, बट वो आ रही है क्या? वो आ रही है क्या? नहीं, यहाँ ओवरफ्लो ऑकर हो रहा है। मैंने पहले भी ये एग्जांपल लिया था, यहाँ ओवरफ्लो ऑकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4 बिट्स में 13 ये रेंज में ही नहीं आती।
4 बिट्स में इन 2's कॉम्प्लीमेंट रेंज क्या होती है मेरी -7 2 + 8, बट ये मेरे रेंज में ही नहीं आ रही है मैम, तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन हुई बराबर। तो मैं क्या करूंगी, एक्सटेंड करूंगी 1 बिट, एक्सटेंड करूंगी 1 बिट सो दैट द गिवन नंबर्स कम इन द फॉलोइंग रेंज। अभी 13 5 बिट के रेंज में आता है, तो मेरे को सुनाई दे रहा है यस मैम आता है, यस करेक्ट। तो मैं पॉजिटिव नंबर होगी तो मैं 0 ऐड करूंगी, ओके, और यहाँ उसका आंसर आएगा 0 विच गिव्स यू 13, विच गिव्स यू 13। ये है 13 का रिप्रेजेंटेशन इन 5 बिट, इन 5 बिट, अंडरस्टूड? यस। नाउ आई थिंक आपको पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन आया रहेगा कि 5 बिट अगर मतलब 5 बिट में अगर 13 बैठता है एंड मैं 5 बिट यूज करती हूँ टू रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर, तो ये रेंज में आएगा, तो नो ओवरफ्लो ऑकर होगा। बट अगर मैं 4 बिट्स लूँ तो 13 आता नहीं है मेरे रेंज में, दैट्स वाई ओवरफ्लो ऑकर होता है। सो टू अवॉइड दिस कंडीशन मैं MSB बिट से एक्सटेंड करूंगी नंबर, 0 एक्सटेंड करूंगी फॉर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के लिए 1 एक्सटेंड करूंगी, सो दैट वो मेरा आंसर रेंज में बैठेगा और वैसे ओवरफ्लो कंडीशन में अवॉइड करूंगी, अंडरस्टूड? सो ओवरफ्लो कंडीशन कैसे, एक्सटेंड दी 0 फॉर पॉजिटिव नंबर एंड 1 फॉर नेगेटिव नंबर to avoid overflow condition। आई थिंक सबको समझ में आया रहेगा। मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट का ओवरव्यू आज ये लेक्चर में पूरा ओवरव्यू दिया है, हाउ 2's कॉम्प्लीमेंट इज कंसीडर, क्या क्या कंडीशन होते हैं इन एडिशन एज वेल एज इन सब्ट्रैक्शन। मैंने एग्जाम्पल से पूरा एक्सप्लेन करना ट्राई किया है। अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ रहेगा या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया रहेगा तो प्लीज रिवाइंड बैक दिस वीडियो। ये वीडियो हमेशा आपके लिए रहेगा यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेलिस्ट में। सो प्लीज गो बैक एंड हियर इट। इफ कोई भी डाउट होगा प्लीज गिव मी अ नोट ऑन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे समझ में आएगा कि नहीं इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मैं ये वीडियो फिर से लेके आऊंगी फॉर दो स्टूडेंट जिसको नहीं समझा है। प्लीज अगर जेन्युइनली नहीं समझा है तो ही कमेंट पर बात कर रहे हैं, नहीं तो प्लीज मत करना कि नहीं मैम मुझे समझ में नहीं आया। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था 2's कॉम्प्लीमेंट का। सो आज अभी तक मेरे कौन से वीडियोस हुए, 1's कॉम्प्लीमेंट, साइन बिट इंटीजर्स एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, और मैंने नंबर कैसे बेस में लिखना है वो भी समझाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका सम्स लेक्चर लूंगी, वहां मैं पूरे सम्स बताऊंगी और एक नहीं वी विल एक्सप्लेन अप टू 10 या 15 सम सो दैट आपको पूरा क्लियर व्यू हो जाएगा नंबर सिस्टम में क्या कैसे सम्स आते हैं। सो प्लीज बी विथ मी एंड सब सम्स थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो। यू विल गेट एवरी सम, एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट इफ यू आर देयर विथ मी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इनफ फॉर टूडेज वीडियो। ये वीडियो में मैंने पूरा ओवरव्यू बता दिया है 2's कॉम्प्लीमेंट का। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया रहेगा। इफ कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग एंड आई होप यू मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया रहेगा। सो बाय बाय, लव।